प्रकृति को बैलेंस करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ही जरूरी है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी मैं कि यदि हम कार्निवोर्स हमारे इकोसिस्टम से खत्म हो जाते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स खत्म हो जाएंगे तो हर्बीवोरस एनिमल्स की संख्या बढ़ जाएगी, और उनकी संख्या बढ़ते ही फॉरेस्ट में वेजिटेशन पर लोड आएगा, तो वो फॉरेस्ट वेजिटेशन को कंज्यूम करेंगे, और उसके पश्चात भी जब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो जो एक सामान्य से प्रक्रिया है कि हम देखते हैं कि एनिमल्स जो हैं अर्बन एरियाज में आ जाते हैं, तो वो अर्बन एरियाज में हमारे इकोसिस्टम हमारे पास आएंगे, हमने उनके साथ छेड़छाड़ की तो वो आके हमारे सिस्टम में आएंगे। तो इसलिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है हमारे लिए, या वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ इस वेबिनार की कन्वीनर डॉक्टर वीना चौरसिया को कि वो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट किस प्रकार से आवश्यक है उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगी। डॉक्टर वीना चौरसिया। Thank you, Dr. Kusumdang. I welcome all of you in this webinar on wildlife management. Wildlife management is the art and science of maintaining wildlife habitat and population. It involves ecological principles such as carrying capacity of the habitat, preservation and control of habitat, reforestation, predator control, reintroduction of extinct species, capture and reallocation of abundant species. India has been a great wealth of biodiversities, and management of its wildlife is in a judicious way serves protecting our biological diversities. Government has taken various steps to protect wildlife. Few of them are reflected in Project Tiger, Project Elephant, Crocodile Conservation Project, Turtle Project, and other projects in order to maintain the wildlife. Today in this webinar, we'll be knowing about the translocation of tiger, its habitat management from the expert, and also we will learn how to rescue an injured animal. Many a times we come across injured animal and are unaware how to help the poor animal and whom to contact, how to handle it. So not taking much of your time, I'm requesting the chairperson of this webinar, Dr. Jayant Kumar Vijayavargiya, Principal Government College Kota, to address the webinar. Yes, sir, we can hear you. Good afternoon to all of you, entire zoology department, students, Dr. Sedhu Ram Yadav ji and Mr. Yaduvanshi. Today I am not in the college. Unfortunately, day before yesterday, I met with an accident and not physically fit good enough to reach the college. But thank you so much, Zoology Department, for conducting a webinar on wildlife management. In fact, management in each and every part of the life is very important. And that too with reference to the wildlife that contains not only animals but plants too, which is very important. What is going on nowadays? We are not able to take care of our animals. We are not take care of our plants. And when we don't care these things, then we ourselves will be in trouble. So this is a very good topic that has been selected by the zoology department. Dr. Neha, Dr. Kusumdang, Dr. Veena Chaurasia, Dr. Subrat and all. Dr. Harish is also in the picture. I wish all the best for today's webinar. Thank you. Thank you so much. Good luck. थैंक यू वेरी मच सर और प्रिंसिपल सर कि उनकी तबीयत खराब होते हुए भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया और इनॉग्रेट किया हमारे सारे प्रोग्राम को। उनको वंस अगेन डॉक्टर जयंत कुमार विजयवर्गीय प्रिंसिपल सर। अब मैं चाहूँगा जो हमारे अभी आज के जो कार्यवाहक प्रिंसिपल हैं श्री लालचंद जी कहार, वो स्पेशल इनवाइटी हैं आज और वो कुछ इस वाइल्ड लाइफ जो मैनेजमेंट है इस पे हमें दो शब्द कहें। सो वेलकम श्री लालचंद जी कहार सर।
वेबिनार से जुड़े हुए सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी लोग जो इसके आयोजन से जुड़े हुए हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप एक सफल आयोजन के लिए सम्मिलित प्रयास कर रहे हैं। इस वेबिनार में जुड़े हुए माननीय श्री यादव साहब, इसके आयोजक डॉक्टर वीणा चौरसिया और जूलॉजी डिपार्टमेंट के सभी संकाय साथी लोग, आप सभी इस अच्छे आयोजन के लिए बधाई के पात्र हैं। और आपने जो विषय चुना है वो विषय वन्य जीव प्रबंधन का, ये सभी लोगों की एक सामान्य जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि वन्य जीवों का प्रबंधन किस तरह से किया जाए। आज इस विषय के विशेषज्ञ उस प्रबंधन के बारे में हमें जानकारी देंगे, जिससे जो भी इस वेबिनार में शामिल है वो सारे लोग लाभान्वित होंगे कि वन्य जीवों का प्रबंधन किस तरह से किया जाता है, किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और उस प्रबंधन से हमारे पर्यावरण को क्या लाभ होगा और उस लाभ से हमारे जीवन पे क्या उसका प्रभाव होता है। वो क्योंकि अल्टीमेटली सारे लाभ और सारे प्रभाव हमारे मानवीय जीवन को ही लाभान्वित करते हैं, तो वन्य जीव प्रबंधन भी मानवीय जीवन को ही लाभान्वित करने के लिए आवश्यक होता है। मैं इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों को एक बार फिर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और एक बार फिर पुनः आप लोगों को मेरी तरफ से नमस्ते। Today, we are privileged to have Mr. Sedhuram Yadav sir, Chief Conservator of Forest of Mukundra Hill Tiger Reserve. The man of vast experience is with us, and students, faculty members, and all other participants are on high spirit to have you, sir. As sir gave his introduction that he conducted, managed in Sariska, then Ranthambore, and now also looking after the corridor being developed for the tigers. So we all are very curious to listen Mr. Sedhuram sir on his experience and the ongoing project which is regularly coming in the newspapers. So we are very, very delighted, very, very enthusiastic to have you, sir. I welcome to the dais. Sir, Sedhuram Yadav, sir, please. Thank you. Good morning to all, and especially Principal Government College Dr. Jayant Kumar Vijayvargiya ji, Lalchand Kahar Saab, Madam Kusum Dung, and इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वीणु चौरसिया. Today is the subject is for wildlife management. Wildlife management is a vast subject, and as per the program, I have to deliver and discuss more about the tiger introduction, tiger management, and wildlife management in Rajasthan, and especially in the Hadoti region. So for this purpose, if you permit, I can start with a small presentation with the basic things and what are the requirements and what are the needs, what are the protocols for the species reintroduction and wildlife management. So I will start with a small presentation. Thank you. Now the base subject is wildlife management. So before starting wildlife management, we should know what is wildlife. So wildlife includes any wild animal, aquatic or land vegetation which forms the part of any habitat. And habitat is defined as
land, water or vegetation which is the natural home of any wild animal. और for this purpose जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 implemented from 1972 an act to provide for protection of wild animal, birds and plants and for the matter connected therewith or ancillary or incidental thereto with a view of ensuring the ecological and environmental security of the country. This is the basic thing behind this Wildlife Protection Act for ecological and environmental security of the country. Now, what is the wildlife management? As in the brief introduction, Madam Kusum Dang tell, the wildlife management is an interdisciplinary that deals with the protecting endangered and threatened species and subspecies and their habitat, as well as the non-threatened agricultural animals and game species. The wildlife management program emphasizes both applied and basic research in wildlife ecology, management, education, and extension. Wildlife management takes into consideration the ecological principles such as the carrying capacity of the habitat, preservation and control of habitat, reforestation, predator control, reintroduction of extinct species, capture and reallocation of abundant species, and management of desirable and undesirable species. Now the habitat restoration and management. The habitat management is a primary tool wildlife biologists use for manage, protect and enhance the wildlife population. Increased wildlife diversity is an area, may be a wildlife management goal. It is difficult to develop a strategy for managing each species separately. Several wildlife species can benefit when a complete ecosystem is improved or preserved. Interact to meet the needs of threatened and endangered species or the group of species. Managers may enhance grassland area by clearing bushes and removing trees as well as overplanting them with native species. Help reduce cover used to as predator and improves. जैसा कि इसमें स्पेशली जो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में पहले पूरा हाईली डिग्रेडेड एरिया था, उसके बाद में इसको डेवलप करने की दृष्टि से, ग्रासलैंड डेवलप करने की दृष्टि से इसमें मुकुंदरा में एक 82 स्क्वायर किलोमीटर का, दर्रा में 82 स्क्वायर किलोमीटर का प्रीडेटर प्रूफ फेंसी बना के उसको एनक्लोज किया गया और उसके ऑल द ट्रॉपिक लेवल डेवलप करने हेतु पहला जो ट्रॉपिक लेवल में आता है उसमें ग्रास लैंड एंड ट्री जो हैबिटेट डेवलपमेंट का वो किया। उसके बाद में सेकंड ट्रॉपिक लेवल में जो हर्बीवर्स आते हैं और हर्बीवर्स छोड़ने का और हर्बीवर्स का प्रोटेक्शन देने के बाद कार्य किया गया और उसके बाद में जो प्रेडेटर जो टाइगर लाने का कार्य वो इसमें किया। Now, wildlife is a vast subject, and for the wildlife management, there are the provision of the protected areas. And protected area include the national park, sanctuary, and conservation regions. In Rajasthan, there are 3 tiger reserves and 3 national park and 27 sanctuaries. In Hardapur region, in my jurisdiction, there is 1 tiger region, Mukunda Hill Tiger Region, and there are sanctuaries, Bhansrodgarh Wildlife Sanctuary, National Chambar Sanctuary, Shergarh Wildlife Sanctuary, Ramgarh Wildlife Sanctuary, which is also in the process of declaration of the tiger region. And this is the landscape level management is the new concept. In this slide, this is the whole landscape,
which starts from Ranthambore, Dholpur to Gandhi Sagar area in the MP. This is the Ranthambore landscape, and this is the Kunnu Palpur. This is the Mukundra Hill Tiger Reserve. This is the whole landscape of available for the tiger, and now the cheetah introduction plan is also in this area, and its area is about 3,500 square kilometer. This is the landscape in this Gandhi Sagar. This is the Gandhi Sagar area, and this is the Mukundra Hill Tiger Reserve area, Shergad, and adjoining to this, this is the MP Kunnu Palpur, MP. So this is also a good landscape for this cheetah and tiger conservation. Gandhi Sagar Bhansrodgarh Conservation Landscape is area about 2,000 square kilometer. An interested landscape that can be established for long-term survival of free-ranging tiger, cheetah, serve as a flagship and also perform their ecological role in the restore. Emphasizing on Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary and adjoining reserve forest area of the Mandsaur and Neemuch in Madhya Pradesh, along with the Mukundra Hill Tiger Reserve, Bhansrodgarh Wildlife Sanctuary, part of Territorial Forest of Chittorgarh Division, Rajasthan, habitat composed of the grassland, savanna, open woodland, along with the evergreen riparian. Now the theme, today's theme is the reintroduction of the species for the wildlife management. The aims, there is a certain protocol established by the National Tiger Conservation Authority. The aim and objective of the reintroduction are well defined. The principle aim of any reintroduction should be establish a viable free-ranging population in wild of tigers or any other species which has become locally extinct in the wild. It should be reintroduced with the tiger formerly natural habitat and range and should require minimal long-term management. The objective of reintroduction may include to enhance the long-term survival of wild tigers or any other species in a manner that they could potentially perform their ecological and evolutionary role at no time should tiger. Now, as we are reintroducing tiger in Mukundra Hill Tiger Reserve in 2018, April 2018, this was up to the 82, there were the natural tigers in Mukundra Darra area, and so that's why it was the fit for the it fulfills the aims of principle of reintroduction of tiger. And recently we are also preparing and planning for the reintroduction of tiger in Ramgarh Vistari Tiger Reserve, which was also have the natural habitat of the tigers. For taking any reintroduction plan, as per the protocol, there is a standard protocol that a team should be constituted by the NTCA, National Tiger Conservation Authority, which was previously known as the Project Tiger. The team will consist of representatives from Wildlife Institute of India, concerned state forest departments, and qualified veterinarian and qualified field biologist. The team leader would be responsible for the coordination between the various bodies, and provision should be made for publicity and public education about the project. The provision of the Wildlife Protection Act shall be adhered to at all times,
The proposal, progress and activities of the translocation of exercise should be transparent and communicated through appropriate forum and media as to gain public support. The National Tiger Conservation Authority will keep an oversight on the translocation process and may also depute a representative as and when considered. जैसा कि अभी आपने मीडिया में अभी देखा होगा कि बार बार ये चीज आती है कि मुकुंदरा में साहब एक टाइगर्स वहां एनक्लोजर में उसका छोड़ा नहीं जाए, तो इसी प्रोटोकॉल के तहत एक सेट प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से आपका यहां से प्रपोजल जाता है। प्रपोजल के बाद में एंटी सेल्यूलर पे से विचार होता है, एक टेक्निकल कमेटी होती है हाई लेवल पे जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं और कुछ, तो वो उस पे सारी चीजों का इन प्रिंसिपल्स पे पूरा कंसिडर करने के बाद में ही कोई प्रपोजल को अप्रूवल करने के दिशा निर्देश जाते हैं। अब फॉर एनी रीइंट्रोडक्शन प्रपोजल पहले प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज होती हैं, उसमें पहले बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में आते हैं कि उस एरिया की एक बायोलॉजिकल स्टडी की जाती है। In that study, the feasibility study and background research and assessment should be made for the taxonomic status of tigers to be reintroduced. There should be preferably be same evolutionary significant unit and those which were extirpated, unless an adequate numbers are not available. Potential source founder population should be identified, assessed and prioritized based on genetically and geographical closeness of proposed reintroduction population. जैसा कि अभी आप कई बार पेपर्स में देखते हैं कि लोग ऐसे ऐसे सुझाव देते हैं, साहब वहां से आप टाइगर कहीं महाराष्ट्र से ले आओ, आप टाइगर कहीं एमपी से ले आओ, तो उस चीज में ये सारी बायोलॉजी कर सकते कि आपका जेनेटिकल एंड ज्योग्राफिकल क्लोजनेस कौन सा है जिसमें कि वो टाइगर स्पीसीज सरवाइव कर सके। ऐसे बिना इसकी प्रॉपर बायोलॉजिकल स्टडी किए हुए हम कोई भी रीइंट्रोडक्शन प्लान इसमें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। फिर दूसरा नंबर आता था चॉइस ऑफ रिलीज साइट एंड टाइम। ए साइट शुड बी विद इन द हिस्टोरिक रेंज ऑफ द टाइगर्स, कि ऐसे एरिया में ले जाके टाइगर नहीं रीइंट्रोड्यूस या कोई भी नई स्पीसीज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते जिस एरिया में पहले वो स्पीसीज कभी रही नहीं। The site should be within the historic range of the tigers. For an initially reinforcement, there should be few remnant wild individuals. For a reintroduction, there should be no remnant population to prevent disease spread, social disruption and introduction of alien genes. In some circumstances, a reintroduction or reinforcement may have to be made into area which is fenced or otherwise delimited. इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए मुकुंदरा में जब पहली बार जब 80 के आसपास टाइगर एक्सटिंक्ट हो गया था, तो 2018 में लगभग 40 इयर्स के बाद में रीइंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसी के दृष्टि हुए एक एरिया को फेंस करके और उसमें टाइगर को रीइंट्रोडक्शन का प्रोसेस किया गया था। उसमें भी कुछ बाद में 2020 का में कुछ टाइगर्स की डेथ हो गई, तो उसका भी ये क्या कारण रहा उसका वेल स्टडी करने के बाद में ही ये आगे की कार्रवाई इसमें किया जाना अभी अंडर कंसिडरेशन है। अब उसके बाद में क्या इवोल्यूशन ऑफ द रीइंट्रोडक्शन साइट। अभी जैसे आप भाई मुकुंदरा की बात स्पेशली करते हैं, तो उसी हिसाब से ये चीजें कि भाई ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत इसका इवोल्यूशन किया जाता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल हैबिटेट रीइंट्रोडक्शन शुड ओनली टेक प्लेस वेयर द हैबिटेट एंड लैंडस्केप रिक्वायरमेंट ऑफ टाइगर आर सेटिस्फाइड एंड लाइकली टू बी सस्टेन्ड फॉर सीएबल फ्यूचर। द पॉसिबिलिटी ऑफ नेचुरल हैबिटेट चेंजेस सिंस एक्सप्लोरेशन मस्ट बी कंसिडर्ड, कि जब पहले वो स्पीसीज वहां से एक्सटिंक्ट हुई उसके क्या कारण रहे उसको भी पहले एक बार पूरा एग्जामिन करके स्टडी करके और उसके जो भी चीजें भाई ये दोबारा नहीं हो सके
वो सब चीजें कंसिडर करनी थी। Likewise, change in the legal, political and cultural environment, since species expression need to be ascertained and evaluated as possible constant. The area should be sufficient carrying capacity to sustain growth of the reintroduced population and support a viable self-sustaining population in the long run. Identification and elimination or reduction to a sufficient level of the previous causes of decline. ये बहुत जरूरी है। अभी जैसे इसमें कैरिंग कैपेसिटी, प्रीवियस कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, या पहले आप सबको पता होगा 2002 के बाद में एक टाइगर डिस्पर्स होकर आ गया था रणथंभौर से, और उसका एक ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। तो ये सारी चीजें, यहाँ कितना हर्बिवोर्स हैं, कितने सस्टेन कर सकते हैं, कितना का हर्बिवोर सेगमेंटेशन का जरूरत है, क्या आपको सोशली, पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली क्या नीड है। जैसे कि मुकुंदरा का एक ड्रॉबैक है कि इसका जो विड्थ है वो 2 to 5 किलोमीटर ही है, तो इसका मतलब विड्थ बहुत कम है। लेंथ बहुत है, 80 किलोमीटर है, लेकिन विड्थ बहुत कम है, तो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। तो ये सब चीजें उसमें जो इवोल्यूशन है उसका सारी चीजें ये कंसिडर करना पड़ता है। तो ओवर हंटिंग, पॉइजनिंग, competition in the predation by introduced species, commercial poaching, habitat loss, and errors effect of earlier management program where the release site has undergone substantial degradation cause of human activity. A habitat restoration program or program in resettled human should be initiated before the reintroduction of carrier. इसी की दृष्टि को रखते हुए, इसी इवोल्यूशन को, इसी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में 14 गांव बसे हुए हैं कोर एरिया के अंदर, तो जो विलेज रिलोकेशन का प्रोग्राम है वो भी बहुत ही इसके साइमल्टेनियसली किया जाना आवश्यक होता है। अभी तक 2 गांव इसमें रिलोकेट हो चुके हैं और बाकी का भी प्रोसेस चल रहा है। फिर इसके हिसाब से सूटेबिलिटी टू रिलीज द स्टॉक ऑफ टाइगर, आप टाइगर कहां से लाएंगे, उसके स्टॉक की क्या चीजें आप कंसिडर करोगे, ये भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। It is desirable that source tiger come from the wild population. If there is a choice of wild population to supply founder stock of translocation, the source population should ideally be close relatively genetically to the original native stock of so similar ecological characteristic to the original population. Removal of individual of reintroduction must not endanger the wild source population. ऐसा नहीं कि हम लाने के चक्कर में वहां की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए। स्टॉक मस्ट बी गारंटेड अवेलेबल ऑन ए रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल बेसिस। ऐसे नहीं कि हम एक लाके जैसे हो जाता है कि बाद में आपको फीमेल नहीं मिल रही, मेल नहीं मिल रहा, सफिशिएंट जो सप्लाई करना है वो भी उसको पहले ही डिटरमाइन किया जाना आवश्यक है। Meeting the specification of the project protocol. Individual should only be removed from the wild population after the effect of translocation on the donor population have been assessed and after it is guaranteed that these effects will not negative. To minimize the impact on the founder host population, preferably tigresses between the age of 2 to 3 years sub-adult who have become independent from their mother but are yet to establish their own territories should be targeted. This cohort also has to be highest reproductive potential and therefore ideal for starting new population. Male tigers become sexually mature at the age of 2 years but rarely can be bred till 4 years of age in the wild. This age group 2 to 3 ideal for translocation of reintroduction as the removal from the host population will not result in turnovers and subsequent infanticide episodes. All efforts should be made not to translocate established breeding individual from the host population. Potential individual tigers that are to be translocated should be monitored prior to their capture and ascertain their social health behavior. इसके साथ साथ जिस एरिया में हम टाइगर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या जिस एरिया से हम टाइगर ला रहे हैं उसका सोशियो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स भी कंसिडर करना आवश्यक है। तो
for the reintroduction are generally long-term projects that require the commitment of long-term financial and political support. Social economic studies should be made to assess impact, cost, and benefit of reintroduction program to local human population. A thorough assessment of attitudes of local people to the proposed project is necessary to ensure long-term protection and reintroduction population, especially if the cause of species decline was due to human factors, overhunting, or population loss of alteration of habitat. Programs should be fully understood, acceptable, and supported by local communities. Where the security of the reintroduced population is at risk from the human activity, measures should be taken to minimize these in the reintroduction area. If these measures are inadequate, reintroduction should be abandoned or alternative release areas sought. If tigers pose potential risk of life or property, these risks should be minimized and adequate provision made to compensation where necessary. Where all other solution fails, removal of the released tiger should be considered. इसके अलावा जो आपके प्लानिंग और रिपीटेशन एंड रिलीज स्ट्रेटेजी क्या आपकी प्लानिंग करनी पड़ती है जहां साइड पे आपको ये टाइगर रिइंट्रोड्यूस किया जाता है. The constitution of the multidisciplinary team with access to expert technical advice to all the phase of the program. All the phase मतलब initially planning stage and जहां से हम टाइगर लाएंगे उस मेटा पॉपुलेशन की वहां की और उसका कैसे आप ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, कैसे रिलीज करेंगे, सॉफ्ट रिलीज करेंगे, हार्ड रिलीज करेंगे, मॉनिटर कैसे करेंगे, प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम एंड प्रोग्राम आइडेंटिफाई द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म success indicator and prediction of the program duration in context to agreed aim and objective as per the plan and population management plan. Securing adequate funding for all program phases. ये पूरा फंडिंग पैटर्न का भी पूरा पहले सिक्योर किया जाए. डिजाइन ऑफ द प्री एंड पोस्ट रिलीज मॉनिटरिंग प्रोग्राम, कैसे आप उसको मॉनिटरिंग सैटेलाइट कॉलर से मॉनिटर करेंगे या फूड पेट्रोलिंग कितने करेंगे, कैसे करेंगे, डे टू डे करेंगे, 24/7 करेंगे, आपको हर टाइगर के लिए कितनी टीम चाहिए, ये सारी चीजें उसकी प्री एंड पोस्ट मॉनिटर प्रोग्राम में डिसाइड कर लेनी चाहिए. जो इसलिए स्टाफ का वेल ट्रेनिंग कैसे है, ट्रेनिंग में कौन एक्सपर्ट है, किसका मॉनिटर होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, वायरलेस नेटवर्क कैसा है आपका, वाटर मैनेजमेंट कैसा है आपका, ये सारी चीजें इसमें आपको पूरी प्लानिंग करके उनको एग्रीगेट करना पड़ता है. मॉनिटरिंग द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज द सर्वाइवल एंड इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन may be necessary for situation proves the unfortunate unfavorable. If release the stock while caught, care must be taken to ensure that a tiger or free from the infection, contagious pathogens and parasite before translocation. The stock will not be exposed to vector of the disease agent which may be present at release site. ये भी ध्यान रखने की ये सारा एक चीज के प्रोटोकॉल है जिसका वर्ड टू वर्ड फॉलो किया जाना आवश्यक है. इसके बाद में जब हमने लाइक टाइगर छोड़ दिया तो उसका पोस्ट रिलीज एक्टिविटीज क्या क्या करना है वो भी एक एसेंशियल पार्ट है, वो भी उसका भी एक सेट प्रोटोकॉल. पोस्ट रिलीज मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द टाइगर्स. दिस मोस्ट विटल एस्पेक्ट में भी डायरेक्ट टेलीमेट्री एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग की जाती है. हर टाइगर का कोई भी किया जाता है तो उसको टेलीमेट्री उसके कॉलर लगा के टेलीमेट्री प्रोसेस से उसका 24/7 किया जाता है. डेमोग्राफिक, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल स्टडीज ऑफ रिलीज स्टॉक मस्ट बी अंडरटेकन. स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन बाय इंडिविजुअल एंड द पॉपुलेशन, collection and investigation of mortality, intervention, supplementary feeding, veterinary aid when necessary. Design for the revision of the rescheduling and discontinuation of the program when necessary. जैसे कि अब आपको पता है कि मुकुंदरा में जब 2018-19 में छोड़ दिए गए थे, जब उसमें कुछ चीजें प्रॉब्लम आ गई, कुछ डेथ हो गई, तो वो पूरा डिसकंटिन्यूस किया गया. अब उसको दोबारा से विचार किया करके किया जाए. Habitat protection and restoration of continuous when necessary. Continuing public relation activities including education and mass media coverage, evaluation of the cost effectiveness and success of reintroduction techniques, regular publication in scientific and popular literature.
ये भी इसका एक स्पेशल पार्ट है। अब अपन स्पेशली जैसे मुकुंदरा पे आ जाते हैं, क्योंकि ये सब चीजें प्रोटोकॉल है। मुकुंदरा में क्या हुआ, क्या चीज हुई, उसका भी एक थोड़ा सा आप लोगों को एक जो पेपर में आता रहता है उसके हिसाब से थोड़ा ब्रीफ मैं आपको बताना चाहूंगा। Mukunda Hill Tiger Reserve in 2015, Chief Wildlife Warden Rajasthan submitted a proposal for reintroduction of tiger in Mukunda Hill Tiger Reserve. The proposal was placed in technical committee. NTC, a team was constituted for addressing the feasibility of tiger introduction. The committee carried out rapid appraisal of the status of pre-availability and dependence of local community in the tiger reserve. ये सारी चीजें जब प्री स्टेज में हुई तो ये सारी चीजें की गई। अब इस मुकुंदा हिल टाइगर रिजर्व का जैसे कि ये एरिया है, ये जो नॉर्दर्न साइड का एरिया है, ये चंबल बीच में से निकल रही है और ये इसका जवाहर सागर का पार्ट है और यहाँ बीच में से चंबल निकल रही है। फिर ये कोलीपुरा, ये रोड भी निकल रहा है आपका जो कोटा रावत वाटर रोड का इधर से, और ये फिर ये जो दर्रा आ जाता है, दर्रा में से बीच में से ये स्ट्रिप जो बहुत ही छोटी है, ये 2 से 2 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर का ही है, ये इसका और साथ ही साथ इसमें एक हाईवे जा रहा है और एक रेलवे ट्रैक जा रहा है, विच bifurcates the tiger reserve in 2 parts, northern and southern part. To minimize this problem, an area of 80 square kilometer enclosed by fencing, stone wall fencing and chain link fencing of 8-10 feet height and chain link fencing of 15 feet height. And this is the whole about 200 square kilometer in the southern part, which was degraded, and after this declaration of tiger reserve and stopping of this sheep migration, it area is developed as a grassland. And tiger was reintroduced in this area. This is 80 square, and within the 80 square kilometer, there is an area of 28 hectares for the soft relief for the tigers. As I discussed in the previous slide, as per the assessment of the NTCA technical committee report, the highlight of the rapid assessment done by the committee are as follows. The habitat has high as effect due to linear shape and narrow width forest varying between 2 to 5 kilometers. As I told from in Darra area, it is very narrow strip. There are villages inside that depend on the tiger reserve substance, and there are sorts of disturbance. There are 14 villages within the tiger reserve core area which are caused disturbance. The existing connectivity between MSTR and Ranthambore tiger reserve through these are the corridors through the Indragarh, Lakheri, Ramgarh Vistari sanctuary and Dabi, Jawahar Sagar between Ravines and Chambal and Kali Sindh to Darra. The tiger movement between MSTR to RTR is largely facilitated by existing connectivity. One tiger in 2019 came without any reintroduction program. He came from this second corridor from Chambal Kali Sindh to Darra, and when he came to the enclosure and in the capture in the camera trap, then we could know that this tiger naturally dispersed from Ranthambore to Mukundra. There is a potential to recover the habitat to manage as a meta population, which include Ranthambore and Sariska, but require concentrate effort, financial resource, and scientific input for recovery or habitat of prey species. The prey density may be low. In this area, the prey density is also low, and livestock grazing and resource extraction of local community. In 2014, the All India Tiger Estimation Exercise recorded prey density at 9 wild ungulate per square kilometer and higher livestock 29 per square kilometer. The density of co-predatory leopard was estimated 11 leopards per square kilometer.
Based on the observation made during the rapid assessment, the committee recommended the following thing. MSDR has the potential to have a satellite population. It cannot sustain the fulfilled population as a tiger reserve. The MSDR has a potential to have satellite population of tiger provided it is managed within the meta population framework comprised of Ranthambore and Sriska, since there exists varying degree of connectivity. Need to develop and implement comprehensive habitat, prey and tiger recovery program. इसी टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के तहत अब ये जो कॉरिडोर कनेक्टिविटी के तहत जो मुकुंदरा के साथ साथ रामगढ़ टाइगर रिजर्व को भी इसको डेवलप करते हुए इसको एक टाइगर रिजर्व के रूप में डेवलप किया जा रहा है, सो दैट इट विल गिव द वेरी गुड कनेक्टिविटी बिटवीन रणथंभौर एंड मुकुंदरा. The constitutional multidisciplinary team to habitat and tiger population recovery ascertain the socio-political acceptance and tiger reintroduction program locally communicated, strengthening and protection and law enforcement infrastructure through regular capacity building and awareness program, strengthening existing corridor between MSDR and RTR through comprehensive landscape development plan of the region, implementation mitigation strategy for existing lean infrastructure such as road and railway, preparing a detailed project report for implementing conservation input, adopt age-wise approach of the tiger reintroduction. This is regarding the Mukundra Hill Tiger Reserve. Thank you very much, Mr. Sedhuram Yadav Saab. Your lecture was very informative and all our participants must have been benefited. I request the participant to clear their queries. The session is open for discussion. You can ask your queries from Mr. Sedhuram ji. आपको किसी को भी क्वेश्चन करना है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन कर सकते हैं. पूछो. हाँ. Thank you, sir, for such a nice lecture, informative lecture. I have one question that tiger shows territorial behavior. How much territory does a tiger require? And what are your plans? How many tigers you are going to release in the Mukundra Hill Tiger Reserve? Definitely, tiger is a territorial animal, and its territory depends on many factors. How is the prey density, how is the habitat, water availability, vegetation cover, grassland, and number of the females, males competition. These are many things. Generally, female tigers have the territory of the 20-30 square kilometer, and male have 80 to 100 square kilometer. And in Mukundra, as asked you how many, in Mukundra, our first phase planning, we want to, we have the proposal to reintroduce a male and 2 female in the first phase. If it get success, we will make and then more 1 male and 2 female. Thank you, sir. Thank you. स्टूडेंट्स में से किसी की क्वेरीज हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और सर से आप क्वेश्चन जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करें. हेलो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो चीतल का रिलीज किया गया है उसमें बोमा टेक्निक का यूज किया गया है. इससे पहले 2018 में जब चीतल को रिलीज किया गया था तो इसी टेक्निक से रिलीज किया था या कोई और मैनुअली हैंडल किया गया था? नहीं, पहले वाले चीतल में अब वाले जो इंट्रोडक्शन में डिफरेंस ये है कि पहले जो चीतल ट्रांसलोकेट किए गए थे, दे वर ट्रांसलोकेट फ्रॉम जू टू वाइट, तो उसमें भी कुछ छोटा फनल टाइप का बना के
वो किया गया था, मैनुअली वहां भी नहीं किया गया था। अब क्या वाइल्ड टू वाइल्ड में हो रहा है, तो इसलिए हमें बोमा टेक्निक के हिसाब से बड़ा एरिया कवर करके और उसको ट्रांसलोकेट किया। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स की कोई भी क्वेरी हो, भाई बार बार अखबार में आता रहता है, वो आता है कुछ जो एनी क्वेरी अबाउट वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन राजस्थान एंड इन हाड़ौती रीजन। पार्टिसिपेंट्स में से यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप अभी सर से पूछ सकते हैं। इससे पूछ लो, मेरे वाले से अनम्यूट करें। डॉक्टर वीणा चौरसिया की कुछ क्वेरीज हैं, वो अभी पूछ रही हैं सर से। अनम्यूट कर दीजिए। हेलो सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे टाइगर अभी रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वैसे ही हमारे जो इसके अंदर सोर्सन में पहले गोडावंस थे, उसको भी हम रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिर घड़ियाल भी जो है, जो यहाँ से काली सिंध से, पहले काली सिंध था उसका हैबिटेट, वो भी यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया, तो इसके लिए भी हम कुछ काम कर रहे हैं क्या? जो सोर्सन में है उसमें डब्ल्यूआई का गोडाउन के हिसाब से कुछ चल रहा है। गोडाउन की पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हो गई, तो अभी जो गोडाउन का चल रहा है वो जो डीएनपी में चल रहा है, वो डब्ल्यूआई के साथ वहां सक्सेसफुल होगा तो यहाँ भी प्रस्तावित है। और अभी जो घड़ियाल का है, घड़ियाल का भी अपने स्टेट में अभी घड़ियाल का इस पे कुछ प्रपोजल, इसमें काली सिंध का रीइंट्रोडक्शन का भी नहीं बनाया गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छे से ही हमारे पार्टिसिपेंट्स की क्वेरीज को शांत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आया, या मैडम मैं पूछना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स के कुछ समझ में नहीं आया या कुछ ऐसे कोई क्वेरी नहीं है स्टूडेंट्स की? एक्चुअली क्या, स्टूडेंट्स जो है ना, बहुत बार ऐसा रहता है कि हम लोग क्लास में भी देखते हैं कि वो हेजिटेट कर जाते हैं क्वेश्चन पूछने में, और वेबिनार का तो हम इस कोविड पीरियड में हम लोगों को तो फिर भी आदत में आ गया है, तो स्टूडेंट शायद कई बार उसमें हेजिटेट कर जाते हैं डायरेक्ट पूछने में। और आपसे शायद आपकी इतनी वास्ट नॉलेज है, तो उनको कई बार पूछने में भी झिझक जाते हैं कि मेरा क्वेश्चन कहीं कोई बचकाना सा तो नहीं लगेगा। सच बात पूछ सकते हैं, मैं तो अगर कोई बचकाना नहीं होता है, कोई एक्सपर्ट नहीं होता है वाइल्ड लाइफ में, सब ये सब एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आता है, फिर भी कुछ ऐसा कुछ बचकाना नहीं होता है। पार्टिसिपेंट्स, आप यदि कुछ पूछना चाहें, भुवनेश जी, हिमांशी, किरण गोचर, आप में से किसी की भी क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। रुचिल, मेधा। Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I have a query. Sir, why the genetic composition is important when we are just relocating an animal? Sir, is it because of an environmental or ecological? नहीं, डेफिनेटली क्या है, जेनेटिकली अभी जो टाइगर की टोटल 8 सब स्पीसीज है, अभी पूरा जो इंडिया में है, जो बंगाल टाइगर है, टिग्रिस, वो भी क्या है कि उसमें थोड़ा सा जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। अभी आप सुंदरवन के टाइगर देखोगे तो वो थोड़ा सा इनसे थोड़ी साइज छोटी होती है, वो होते हैं, थोड़ा सा कंपोजिशन में चेंज आ जाता है। तो ये जो रणथंभौर का जो वेस्टर्न मोस्ट का टाइगर रीजन है, उसका जेनेटिक कंपोजिशन थोड़ा अलग है। जो राजस्थान के जो तो रणथंभौर वाला ही है जेनेटिक, सरिस्काम भी गए, रणथंभौर से गए हैं, तो जेनेटिक कंपोजिशन थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। इसलिए कि जिस एरिया में आप छोड़ रहे हो उसी जेनेटिक कंपोजिशन का हो, तो इट इज प्रोव्ड द मोर सक्सेस। Thank you so much, sir. थैंक यू सर। और इसके साथ ही साथ मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को या हमारे जो ऑर्गेनाइजर है, मैं उनको इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतनी अच्छी एक टॉपिक पे वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाई कि इसमें हमारे साथ न केवल हमारी स्टेट से बल्कि प्रयागराज से हमारे साथ वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर एयर कॉमोडोर AK चौरसिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन लोगों के एयरफोर्स स्टेशन में भी काफी रेस्क्यू वगैरह की जरूरत पड़ती है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की। नहीं, एयरफोर्स वालों ने हमें स्पेशली, जब हम इंट्रोड्यूस द टाइगर इन सरिस्का इन द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड,
तो एयरफोर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने हमें चॉपर अवेलेबल कराया था और जो 28 जून 2008 को हम पहला ट्रांसलोकेशन किया था और 4 जुलाई को दूसरा किया था। एट दैट टाइम आई वाज इन रणथंभौर, तो वो पूरा एयरफोर्स वालों का विशेष इसमें योगदान रहा था। हाँ जी, तो मैं इसीलिए अजय कुमार चौरसिया जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में, इस वेबिनार में भाग लिया और इसको सुना, ताकि हमें भी अच्छा लगा कि हमारे साथ एक ऐसे एमिनेंट जो है पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं। अजय कुमार चौरसिया जी से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप सर से बात कर सकते हैं। अजय जी, शायद वो अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। एनीवे, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सेठूराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू हमारे साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा अच्छा हुआ कि वेबिनार किया है, वो तो होती रहती है, तो आप थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स को और या आपके जो भी प्रोफेसर लेक्चर्स उनको थोड़ा मोटिवेट करें, कुछ रिसर्च प्रोग्राम यहाँ इस वाइल्ड लाइफ से संबंधित अपने कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट लेते रहे। डेफिनेटली सर, हम आपसे इस बारे में गाइडेंस लेंगे और विजिट करवाएंगे, ताकि हमारे बच्चे डायरेक्ट आपसे जुड़ेंगे तो वो भी सीखेंगे। तो निश्चित रूप से हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे और आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने व्यस्तम शेड्यूल में से इतना समय हमें दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत पुनः एक बार आभारी हैं। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे डॉक्टर सुब्रत शर्मा जी को, वो आगे की वेबिनार को वो कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर सुब्रत मैडम आई वांट टू लीव नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज शायद चालू करके कहीं और किसी काम में बिजी हो गए। आज के इस वेबिनार में अब हमारे दूसरे प्रतिभागी, या कहना चाहिए जिन हम स्पीकर श्री बनवारी जी यदुवंशी का हम लोग अब सानिध्य हमको मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बनवारी जी का अपने डिपार्टमेंट, अपने कॉलेज की तरफ से बहुत स्वागत करता हूं कि वो अपने व्यस्तम समय निकाल करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय दे दूं कि बनवारी जी जो हैं कला विभाग से, मतलब हमारे राजकीय महाविद्यालय कोटा का जो आर्ट्स डिपार्टमेंट है वहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण करी और आर्ट्स के होते हुए, कला के विद्यार्थी होते हुए उनके अंदर जो एक चीज है कि किस तरीके से हमारा समाज और समाज के साथ जुड़ा हुआ हमारा वन क्षेत्र, जिसके अंदर की हमारे वन्य प्राणी और हम जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, उनके संग किस तरीके का सामंजस्य है, उन जीव जंतुओं को हम किस तरीके से बचा के रख सकते हैं, उनको हम किस तरीके से संरक्षण दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में आप जुड़े रहे और इसी के तहत इन्होंने एक चंबल रेस्क्यू फोर्स का गठन किया, क्योंकि हमारा हाड़ौती एरिया जो है, कोटा एरिया जो है, वो बिना चरमन्य नदी के इसका किसी तरीके से विकास नहीं है। तो हमारा जो कोटा क्षेत्र है उसके लिए एक बहुत अच्छा वरदान हम लोगों को मिला हुआ है चंबल नदी का। तो उस चंबल नदी के किनारे किनारे किस तरीके से हमारे प्राणी, हमारे एनिमल्स जो है वो रह रहे हैं, उनके साथ किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके से हमारा जो मानव है, हम मानव लोग जो हैं उन एनिमल्स के संग किस तरह का बिहेव करते हैं, उससे हम उन एनिमल्स को किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, या उन एनिमल्स से किस तरीके से हम लोगों के रहने में, करने में दिक्कत आती है, उस चीज को दूर करने का कार्य जो है हमारे बनवारी जी कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोग देखें तो एक जगह का आपका कार्य रहता है कि कुएं के अंदर गिरा हुआ मगरमच्छ किस तरह से निकाला जाए, उसका इन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया। और इसी तरीके से जो अपना वन क्षेत्र है, उन वन क्षेत्र के अंदर जो अपने वन्य प्राणी हैं उनको किस तरीके से कंजर्व किया जाए, उसके लिए आप तत्पर हैं। ये तो एक अपना इनका वन क्षेत्र के अंदर का वाइल्ड लाइफ का कार्य है, लेकिन उसके साथ साथ विद्यार्थियों को भी वन क्षेत्र से अवगत कराना, वहाँ के हैबिटेट से,
इस तरीके से वहाँ एनिमल्स रहते हैं, करते हैं, उसका भी आप भ्रमण करवाते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी चीज है कि चंबल नदी में चंबल सफारी का जो कार्य है वो भी आपने बहुत बखूबी संभाल रखा है, और उस कार्य को भी, उसके द्वारा भी ये हमारे जो हम लोग जो हैं स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के साथ साथ जो भ्रमण करने के लिए कोटा के अंदर जो ट्रेवलर्स आते हैं उनको भी वो चंबल सफारी के द्वारा चंबल के बारे में बताते हैं, करते हैं। तो इसके लिए आप बहुत ही तत्परता के साथ इस कार्य को किए हुए हैं। जैसे वर्ल्ड फेस्टिवल जो है उसमें भी आपको सम्मानित किया गया, मतलब ऐसा नहीं है कि आप केवल उसके अंदर चीजों को चंबल का दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, साथ में वर्ड्स का भी आपने काफी अच्छे से इस कार्य को किया हुआ है। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं बनवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आपके द्वारा किए जा रहे कार्य और किस तरीके से वो एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं, किस तरीके से उनका आगे खाने का, पीने का, मतलब कई तरीके की चीजें ऐसी हैं, और या हमारे द्वारा, मानव द्वारा वहां पर प्रकृति को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और नुकसान पहुंचाने के साथ साथ एनिमल्स को किस तरह का नुकसान पहुंच रहा है, उसको वो किस तरीके से एनिमल्स को कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं, इन सब की जानकारी के लिए मैं इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं श्री बनवारी जी को। बनवारी जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में, जो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में। स्पेशली मैं अपने कन्वीनर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। श्री बनवारी जी। धन्यवाद सर, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मुझे रेस्क्यू के बारे में बोलने के लिए कहा गया है, तो थैंक यू। मैं करीब पिछले 15 साल से कोटा में रह करके ये रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। हमारी संस्था है चंबल रेस्क्यू, जिसके बारे में आपने बताया है। तो सर रेस्क्यू वैसे तो कहना आसान है कि रेस्क्यू कर लिया या करना चाहिए, या इस एनिमल्स का या लोगों का रेस्क्यू करना है, तो ये कहना आसान है, लेकिन उसको वो शब्द उतने ही कठिन है। जब हम परिस्थितियां देखते हैं रेस्क्यू को लेकर के, तो जहां पे भी रेस्क्यू करना होता है, चाहे वो लोगों का हो या जानवरों का हो, उन परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि किस तरह से हमें रेस्क्यू करना है, और इंस्टेंट निर्णय लेने होते हैं कि कैसे होगा या क्या करना है। क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर जो रेस्क्यू होता है ना, उसमें समय की डिमांड बहुत ज्यादा वैल्यू करती है। क्योंकि जब कभी भी कोई जानवर या जो आदमी है जिसको रेस्क्यू करना है, तो वो उस तरह की विषम परिस्थितियों में फंसा होता है जिसको या तो मेडिकल सुविधा चाहिए, या फिर वो बहुत टाइम से वहां से फंसा हुआ, तो उसको निकालने के लिए उस तरह के प्रशिक्षित टीम को वहां पे जाना होता है। लेकिन अक्सर परिस्थितियां अगर उनके अनुकूल नहीं होगी तो वो रेस्क्यू भी कभी सक्सेस नहीं होता। इसी वजह से अक्सर दिक्कत आती है रेस्क्यू में। और हमारा जो हाड़ होती है, यहाँ की जो हैबिटाट्स है, जो भौगोलिक परिस्थितियां, वहाँ पे यहाँ पे देखेंगे नदी भी है, यहाँ पे वैली वगैरह भी है, वेटलैंड भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ज्यादातर जो रेस्क्यू होते हैं यहाँ पे रेप्टाइल्स का होता है। रेप्टाइल्स में भी यहाँ पे सांप वगैरह मिलेंगे आपको, मगर जो हमारे चंबल से राइट और लेफ्ट में कैनाल है, तो ये नदी से सीधी जुड़ी हुई है दोनों कैनाल। और दोनों कैनाल जब छोटे छोटे माइनर के रूप में ये शहर और आसपास के खेती वाले इलाकों में आती है, तो यहाँ से ये सीधी जुड़ने की वजह से जो मगर है वो नहरों के थ्रू सीधे कॉलोनियों और वहाँ के जो वेटलैंड्स है वहां पे भी आ जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपने कोटा शहर में अक्सर आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि भी बरसात के बाद या बरसात के आसपास जो भी मगर्स के रेस्क्यू ज्यादा होते हैं, मगर को लेकर के। तो वो बरसात में जब ये नहरों के थ्रू कॉलोनी वगैरह में आ जाते हैं। अभी जो रेस्क्यू होंगे गर्मी में, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे ही ये सांपों का रेस्क्यू होने लगेगा। क्योंकि जैसे ही गर्मी होगी ये अपने बिलों से और आसपास के इलाकों से निकल के आबादी क्षेत्र और घरों के अंदर आने लगेंगे। तो जब भी आप देखेंगे ना, अलग अलग टाइम पर अलग अलग समय पे ये अलग अलग एनिमल्स का रेस्क्यू हाड़ोती में
अखबार में न्यूज में देखने को मिलेगा कि कभी मगर के रेस्क्यू ज्यादा हो रहे हैं, वो बरसात के समय पे ज्यादा होगा, कभी गर्मी में ये इसके क्रोकोडाइल्स इसके स्नैक के ज्यादा होंगे। तो रेस्क्यू डिपेंड करता है सर कि परिस्थितियां कैसी है। रेस्क्यू तभी सक्सेस हो सकता है जब जो रेस्क्यू करने टीम जाती है वो परिस्थितियों के अनुसार किस तरह के निर्णय लेती है और किस तरह से उनको उसके साथ वो उसको पकड़ती है और या उसके साथ बिहेव करती है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि हाड़ौती में हम लोग जब काम कर रहे थे तो ये देखा है कि जब भी रेस्क्यू होता है ना तो क्या क्या दिक्कत आती है और क्या नहीं आती। अभी पिछले जो सीसीएफ साहब जो अभी प्रेजेंट टाइम पर श्री साधु राम जी अभी सीसीएफ साहब है, पहले वो डीसीएफ थे यहाँ पे कोटा में। जब इन्होंने मुकुंदरा के प्रदेश को बढ़ाने के लिए जब सलजर में टाइगर लाने की बात की जा रही थी शुरू में, तो अपने कोटा जो मेन शहर है यहाँ पे एक आर्मी का एरिया आपने देखा होगा, यहाँ पे अंटाघर के पास में, वहां पे सांबर की बहुत अच्छी संख्या है। तो सांबर को यहाँ से ट्रैंकुलाइज करके सलजर एरिया में छोड़ना था, लेकिन अब कह तो दिया कि सांबर को पकड़ना है और यहाँ से उसको सलजर में लेके जाना है। बड़ा आसान सा लगता है कि जब यहाँ जानवर हमारे पास सलजर में और मुकुंदरा में प्रवेश की कमी है तो यहाँ से ले जाकर उसको वहां छोड़ दें। लेकिन जब वहां टीम जाती है और काम करती है आर्मी की परिस्थितियों के अनुसार, तो पहले तो उसको आर्मी के रूल्स को भी फॉलो करना है, आम लोग जो वहां से निकलते हैं उनको देखना है। फिर सबसे बड़ी बात, हमारे इस आर्मी के एरिया में जो भी जंगल है ये जूली फ्लोरा का है, यानी पूरा कांटेदार जंगल है। अब उसमें ये सांबर रहते हैं। अब सांबर को ट्रैंकुलाइज करना, पहले तो उसको चुनना कि कौन सा सांबर हमें ट्रैंकुलाइज करना है, फिर उसको डॉट करना। डॉट में फिर आपके एक्सपर्टीज चाहिए, जो आपके डॉक्टर्स वेटनरी डॉक्टर्स थे उस टाइम पर, उन्होंने उसको ट्रैंकुलाइज किया। उसके बाद उसको रिकवर करना, पेड़ों के अंदर है तो वहां से निकालना। अगर वहां पे कीचड़ है, पानी ज्यादा है, तो उसको सांबर का वेट कम नहीं होता, तो उसको पकड़ के वहां से निकालना एक चैलेंजिंग काम है। तो कभी कभी तो पूरा एक दिन लग जाता था, या फिर कभी 2-4 दिन में भी एक सांबर नहीं पकड़ पाते थे। तो ये किस तरह की जो वहां की परिस्थितियां थी कि वहां पे जो झाड़ी नुमा जो जंगल था वहां से निकाल कर लाना, फिर उसको वो टाइम पर सेल जंगल में लेकर जाना और उसको वहां पे वापस रिलीज करना। उसी तरह एक 2007 में कवाई हमारे अटरू के पास में एक खबर आई थी कि एक पैंथर सूखे कुएं में गिर गया, और उसके साथ फॉरेस्ट की टीम और हम लोग भी जब गए वहां पे कवाई में, तो बहुत सारे लोग जो गांव के आसपास के थे, वो उनके लिए एक तमाशा हो जाता है कि भाई एक पैंथर आ गया, कुएं में गिरा हुआ है, फॉरेस्ट की टीम आई, अब ये कैसे उसको रेस्क्यू करेगी, क्या करेगी, कैसे निकालेगी। तो एक सबको लगता है कि चलो इसको देखेंगे। तो 1000-1500 लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। तो रेस्क्यू में अब यहाँ दिक्कत ये है कि पहले तो भीड़ को, जो भीड़ मैनेजमेंट है यहाँ पर, उसको कंट्रोल करना। क्योंकि जब भी अगर कोई रेस्क्यू करेंगे एनिमल रेस्क्यू में, तो अगर भीड़ ज्यादा है तो आवाज ज्यादा होगी, शोरगुल होगा, तो एनिमल उत्तेजित होगा और उसी कंडीशन में कहीं ना कहीं वो अटैक करेगा। ये तो ठीक था, वहाँ कवाई वाले जो एरिया था उसमें कुएं में गिरा हुआ था। तो अब रेस्क्यू में सोचना क्या है, ये देखिए कि उसको कुएं से कैसे निकाला जाए। क्योंकि सूखा कुआ, अब या तो उसको पहले डॉट करें, फिर उसको नीचे कोई जाएगा और उसको निकाल के लाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोगों ने फतेह सिंह जी रणथंभौर के जो पूर्व अधिकारी रहे फॉरेस्ट के, उनसे बात करी फोन पे कि इस तरह की परिस्थितियां हैं और एक पैंथर है उसको रेस्क्यू करना है, और जो जयपुर जू की एक वेटनरी टीम भी कवाई के लिए रवाना हुई है, तो क्या इसको ट्रैंकुलाइज करना ठीक रहेगा। तब उन्होंने कहा कि ये बेकार सी बात है कि उसको किसी जानवर को जानबूझकर ट्रैंकुलाइज किया जाए या कोई इंजेक्शन लगाया जाए, ऐसा न करें। और इससे अच्छा है कि आप लोग पहले तो वहां पे जितने भी लोग हैं उस भीड़ को कंट्रोल करके पहले वहां से हटा दीजिए और आप लोग भी दूर हो जाए, और कोशिश करें कि आप
आपके अगर गांव में आसपास इतनी बड़ी सीढ़ी है, या सीढ़ी नहीं हो तो आप 2-3 बल्ली 5 तरह की जो लकड़ी हो 5-6 उनको आपस में बांधे रस्सी से और कुएं में डाल करके दूर चले जाए, वो पैंथर है अपने आप निकल जाएगा। तो हमने भी सोचा कि जब इस सर ने कहा है तो एक बार ऐसा करते हैं, ये इनकी जो बात है उस पर अमल किया जाए, और बड़ी बड़ी जो लकड़ी होती है उनको मंगा करके उसको रस्सी से बांधा और कुएं में डालकर सारे लोगों को हटा दिया। हम सभी लोग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीम थी और हम सभी दूर जाकर बैठ गए और इंतजार करते रहे रात भर की, क्या बोलते कभी ये निकलेगा और हम उसको देख लेंगे। सेल्फ रेस्क्यू मतलब इसी तरह से हो जाए तो वो भी बेटर है। तो हम रात भर बैठे रहे। जब हम सवेरे गए तो हमें कुछ दिखा नहीं कि भाई वो निकला या नहीं निकला। जब हम कुएं में सवेरे जाकर देखा तो वहां पैंथर नहीं था। उसका रीजन कि वो रात में चुपचाप उन लकड़ियों से ऊपर चढ़ा और चढ़ करके वो रात में ही निकल गया। तो कहने का मतलब है कि रेस्क्यू में डिपेंड करता है कि आपकी जो परिस्थितियां कैसी है और आप किस तरह के निर्णय लेते हो। चाहते तो उसको ट्रैंकुलाइज भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। वहां पे निर्णय लिया गया कि भाई वहां पे सूती कुएं में लकड़ियां डाल दी जाए, वो अपने आप चढ़ेगा निकल जाएगा। तो सबसे अच्छा तो यही कोशिश की जाती है कि भाई जो एनिमल है जिसको रेस्क्यू करना है कम से कम उससे दूरी बना के रखें, भीड़ को मैनेजमेंट करें, और सबसे अच्छा कि उसको डॉट ना लगाया जाए, यानी कि किसी भी तरह की वैक्सीन ना लगाई जाए, और कोशिश करें कि वो अपने आप अपने वाइल्ड एरिया में वापस से चला जाए। उसी तरह एक सबसे बड़ा उदाहरण अपने दौलत सिंह जी का है, जो देखा होगा सुना भी आपने, उनके चेहरे पे टाइगर ने अटैक कर दिया था। तो वहां की परिस्थितियां भी इसी तरह की रही कि वह टाइगर को रेस्क्यू के लिए गए थे, उसको डॉट लगाया गया और उसका वेट भी किया गया कि क्या बोलते हैं डॉट लग गया है, और मेडिकल के अकॉर्डिंग कि इतने टाइम के बाद ये इतना वेट वगैरह या जो भी उसका था कि भाई इतने समय में ये बेहोश हो जाएगा, तो उसका वेट किया गया। लेकिन उस समय जो दौलत सिंह जी वहां पर थे, वो उसके पास जाकर के उसको थोड़ा देखना भी होता है कि भाई ये बेहोश हो गया, इतने टाइम बाद हो जाना चाहिए था। तो उनका टाइमिंग वगैरह सब सही था, लेकिन जब वो पास पहुंचे तो टाइगर बेहोश होने लग रहा था, यानी अर्ध बेहोशी हम उसको कहते हैं, आधे आधा बेहोश हुआ था उसको लेकर के। तो उसमें आधे बेहोशी में उसके पंजा मारा था, जिसकी वजह से उनकी जान पे बनाई। अब इसके पीछे का जो कारण होता है कि भाई इसको इतने डॉट दे दिए गए, उसको इंजेक्शन डॉट्स भी लगा और वो बेहोश भी होने वाला था, तो फिर ये बेहोश क्यों नहीं हुआ? तो कारण ये कि जब वो टाइगर को डॉट लगा रहे थे, उस गांव के आसपास के लोगों की भीड़, वहां का जो शोरगुल, जो मैनेजमेंट था, उस तरह से नहीं हो पाया। और जब भी किसी जानवर को इस तरह से बेहोशी के लिए डोट वगैरह लगाते हैं, और अगर जानवर उत्तेजित है और शांत एरिया नहीं है, तो वो कभी भी उस पर वो दवा असर नहीं करेगी और वो कभी भी बेहोश नहीं होगा। और उसी समय ये कंडीशन हुई थी कि इनका सारा अनुमान फेल हुआ और उसने अटैक किया। आज उनके चेहरे पे देख सकते हैं सारा का सारा। जैसे ही हमारे चंबल में 2020 में ओटर जाल में फंस गया था, और वहां पर देखा कि इसको कैसे निकालें, क्या करें, क्योंकि दूसरे ओटर्स की पूरी फैमिली जो थी वो भी उसके आसपास थी। तो सोचा कि भाई अब अगर इसको नहीं निकालेंगे तो थोड़ी देर बाद डूब के मर जाएगा। तो फिर उसके पास बोट लेकर गए और उसकी जो आसपास ओटर्स थे उनको भगा करके वहां से उसके जाल को काटा। जाल काटने के बाद दूसरे लोग बोट में थे, तो हम उसको डायरेक्ट रिलीज नहीं कर सकते थे, तो वहां से पूरे जाल समेत उसको कोटा सीसीएफ ऑफिस लेकर आए। यहाँ लाने के बाद फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इंफॉर्मेशन दी कि इस तरह से एक ऑटर जाल में फंसा है और इसको रिलीज भी करना है। और उस ऑटर को फिर डिपार्टमेंट के लोगों ने, हम लोगों ने इसको पकड़ा, उस जाल को धीरे धीरे रिमूव करा। रिमूव करने के बाद फिर एक बड़ा सा एक डिब्बा मंगाया ताकि उसको उसमें वापस रखा जा सके और उसको जहाँ से लाए थे वहीं पे रिलीज कर सके। तो कहने का मतलब ये जो उदाहरण इस तरह से मैंने अभी बताया है
कि कोई भी रेस्क्यू में परिस्थितियां सबसे बड़ी स्थिति के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करती है। अगर वहां की स्थिति रेस्क्यू के लायक नहीं है तो जो रेस्क्यू करने जो टीम जा रही है उसको दिक्कत आएगी हमेशा। तो जो जब भी रेस्क्यू होगा, चाहे वो आदमी का हो चाहे वो जानवर सक्सेस या तभी हो सकता है वो जब हम वहां पे इंस्टेंट निर्णय ले सके और उस तरह के काम को करने की कैपेसिटी रखते हो, या हम उस तरह से ट्रेंड हो कि हमने रेस्क्यू में ये इस तरह की चीजों को सीखा है, या आगे हम इसके लिए रेगुलर क्लासेस करते हैं या सीखने के लिए जाते हैं, तभी कुछ सक्सेस हो पाते हैं। बहुत सी बार देखा गया है कि आज जो सोशल मीडिया में अभी बहुत सारे रेप्टाइल्स को और इस तरह के फोटो और वीडियो आते हैं, तो कितनी खबरें आई हुई है कि भाई सांप का वो जो साल्पी ले रहा था और उसने उसको काट लिया और उसकी डेथ हो गई। तो ये गलत है। कभी भी किसी भी जानवर को केवल सेल्फी या फोटो के लिए कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। और हम श्री साधुराम सर ने सही कहा था, वाइल्ड लाइफ में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता, हर दिन उसके लिए सीखने का होता है। अगर वो सीखता रहेगा, और सीखने में भी एक चीज डिपेंड करती है कि उसको सावधान रहना है। अगर रेस्क्यूअर इस तरह की गलती करेगा फोटो सेल्फी और सोशल मीडिया के लिए, तो कहीं ना कहीं वो मात खाएगा और उसको दिक्कत होती है। तो रेस्क्यू करने में जो सबसे बड़ी परेशानी हमेशा आती है वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। और अगर और ओवर कॉन्फिडेंस से हम काम कर रहे हैं, रेस्क्यू करते हैं, तो कभी न कभी उसको प्रॉब्लम आएगी। और रेस्क्यू में एक चीज कहते हैं कि कभी भी उसको सेकंड चांस नहीं मिलता, फर्स्ट इज लास्ट होता है रेस्क्यू में। तो चाहे वो रेप्टाइल्स में हो चाहे वो ह्यूमन रेस्क्यू में हो, जो भी हम रेस्क्यू करेंगे सावधानी से हम लोग करते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको समझते हैं, और तभी उसको रेस्क्यू कर पाते हैं। कि अगर वाइल्ड एनिमल है तो उसको कैसे पकड़ना है, कैसे करना है, ये उस समय की परिस्थितियों पे ही डिपेंड करेगा। एक बार जवाहर सागर में ये 2009 के आसपास एक स्लोथ बियर का रेस्क्यू करना था। वहां पर एक रात को स्लोथ बियर आया और वो कॉलोनी में रुक गया। सवेरे जब उजाला हुआ तो वो पेड़ पे चढ़ा और एक छोटे से नीम के पेड़ पर लोगों ने हा उल्ला शोरगुल कर दिया, तो उस वजह से वो न तो नीचे उतर पाया और न भाग पाया। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी आई। अब उसको भगाने के लिए हम क्या बोलते हैं, उन्होंने आग वाग भी लगाई कि भाई जानवर है तो आग लगा दी जाए और इसको उससे डराकर भगाया। लेकिन वहाँ उस समय देखा तो उसके आग का असर हुआ न कुछ हुआ, पेड़ से उतरा ही नहीं। वो इतना डर गया और क्राउड से घबरा गया कि उसने चाहे आप लगा दो मार दो कुछ भी करो, वो नीचे नहीं उतरा और उसी कंडीशन में वहीं बैठा रहा। तब फिर एक निर्णय लिया कि भैया सबको यहाँ से हटाओ, जब थोड़ा अंधेरा होगा और शांत एनवायरमेंट हो जाएगा या वातावरण उस तरह से, तभी अपने आप नीचे उतरेगा और जंगल में चला जाएगा। तो पहले सबसे पहले वहाँ के जो लोग थे उन लोगों को वहां से हटाया, और हटाने के बाद इंतजार किया तो 8-9 बजे करीब वो पेड़ से नीचे उतरा खुद और खुद ही जंगल में चला गया। तो अक्सर हमेशा जब भी दिक्कत आती है वो मैनेजमेंट को लेकर के आती है रेस्क्यू में। और क्राउड मैनेजमेंट के अलावा एक चीज और डिपेंड करती है रेस्क्यू के लिए, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। कभी भी रेस्क्यूअर न खोए, क्योंकि उसी वजह से हमेशा हादसे होते हैं। और वो हादसे हमेशा अखबार और टीवी में आपको फिर सुनाई देंगे कि इसको रेप्टाइल्स को या क्रोकोडाइल्स को रेस्क्यू करते हुए इस तरह की घटना हो गई और रेस्क्यूअर का या तो उंगली काट या फिर किसी स्नेक ने उसको बाइट कर दिया। तो हाड़ोटी में भी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई है। और हमारा जो हाड़ोटी का जो हैबिटाट है, चाहे वो पानी हमारी नदी हो चाहे घाटी हो चाहे ग्रासलैंड हो, अक्सर इस तरह के रेस्क्यू रेगुलर और हर दिन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर जो ज्यादा से ज्यादा जो रेस्क्यू होता है वो रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल और ये स्नेक का ही होता है। तो कहने का मतलब यही है कि रेस्क्यू में अगर रेस्क्यू टीम को समझ नहीं है और वो उसको करने के लिए जाती है और वहां पे भीड़ की जो मैनेजमेंट वो नहीं कर पाते और वहां की परिस्थिति को नहीं समझ पाते, तब दिक्कत आती है और उस दिक्कत में कहीं न कहीं हादसे होता है।
हेलो हेलो धन्यवाद बनवारी जी। आपने वाइल्ड लाइफ के रेस्क्यू के बारे में हम सब प्रतिभागियों को बताया और आप 15 वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं एनिमल्स का, जिसमें सभी तरह के एनिमल्स हैं, जैसे कि ओटर, टाइगर रेस्क्यू, crocodile rescue and spotted deer and other animal rescue, panther rescue। आपने बताया कि किस तरह विपरीत परिस्थितियों में रहकर इन एनिमल्स का रेस्क्यू किया जाता है, और जब कोई एनिमल कहीं फंस जाता है तो लोगों के लिए वो एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वहाँ जमा भीड़ की वजह से रेस्क्यू करना और भी मुश्किल हो जाता है। आपने बताया कि किस तरह से एनिमल को अगर शांत वातावरण दिया जाए तो वो स्वयं अपने आप को उस परिस्थिति से निकाल सकता है थोड़ी सी हेल्प के द्वारा, जैसे कि कुएं में से गिरा हुआ पैंथर किस तरह से निकाला जा सकता है, या पेड़ पर चढ़ा हुआ भालू किस तरह से रात के समय में खुद ही उतर कर वापस चला गया। तो अगर एनिमल को अगर नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाए, डिस्टर्ब कम से कम किया जाए, तो वो स्वयं उसका रेस्क्यू कर सकता है, बस उसको एक प्लान के तहत किया जाए। तो आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी पार्टिसिपेंट्स जो इस वेबिनार से जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर भविष्य में किसी को किसी एनिमल के रेस्क्यू की अगर ज़रूरत होती है अपने आसपास के वातावरण में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बनवारी जी से संपर्क कर सकते हैं। जी जरूर जरूर सर। कोई प्रतिभागी कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकता है बनवारी जी से। बनवारी जी, मेरा एक प्रश्न है कि अगर कोई इंजर्ड एनिमल हमें मिलता है, या किसी भी जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो सुन रहे हैं उनको अगर वो इनकाउंटर करते हैं किसी भी इंजर्ड एनिमल को, तो कौन से नंबर पे संपर्क करें, किसे संपर्क करें, ये अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैम हमारी संस्था है, एक तो आप हमें भी बता सकते हैं और फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो तो अभी आपने सुना होगा, हाँ वो नंबर यहाँ पे कंट्रोल देंगे तो मैं शेयर कर दूंगी सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ। जी जी, मैं आपको है ना मैं टैक्स कर दूंगा, कंट्रोल रूम के भी नंबर कर दूंगा यहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, चाहे वो टेरिटोरियल हो या फिर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट रेस्क्यू टीम का हो, और हमारा भी हम कर देंगे, ताकि ये क्या मैसेज भी हम कन्वे कर देते हैं, और अगर वो टीम नहीं पहुंच पाती है तो हम लोगों के जो भी मेंबर्स हैं वो भी वहां जाके उसको मदद करते हैं इसको लेकर के, तो नंबर हम लोग आपको कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का और जो हमारे दोनों डिस्टिंग्विश स्पीकर हैं उनका मैं धन्यवाद करती हूँ मैं, और आप लोगों ने हमें बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, और उम्मीद करती हूँ कि हम आगे भी इस प्लेटफॉर्म पे दूसरी एक्टिविटीज कराते रहेंगे और आप लोगों से पुनः मिलेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना जो फीडबैक फॉर्म जो भी मैं ग्रुप में डालूंगी उसको आप जरूर फिलअप करें, और अपने जो भी है सर्टिफिकेट्स आपके जो है आपके मेल में से आपको भेज दिया जाएगा। सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।